मैं बोल सकता हूँ अमेरिकन, ब्रिटिश, स्कॉटिश, पॉश, ऑस्ट्रेलियन, मतलब मिलाकर 5 एक्सेंट. कोई एक बोल के Australian English because it is the most common English to learn. Because if we do any type of Australian English, because you all have heard that hello everybody, today is yours maths class. हम और आप सिर्फ एक दो भाषा छोड़कर किसी और भाषा में बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सिर्फ 8 वर्ष के रिधान हैं जो 6 अलग अलग देश की एक्सेंट में, शैली में, भाषा शैली में बात कर सकते हैं. रिधन, कितने देश के बारे में भाषा शैली में बोल सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ अमेरिकन, ब्रिटिश, स्कॉटिश, पॉश, ऑस्ट्रेलियन, मतलब मिलाकर 5 एक्सेंट. कोई एक बोल के दिखाइए, ब्रिटिश से ही शुरू. सबसे पहले तो मैं अपने इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. मेरा नाम रिधान है, मैं क्लास 3C में पढ़ता हूँ और उसके साथ मेरे स्कूल का नाम विशेष स्कूल बहू बाजार है और बल्कि मैं डोरंडा रांची के एलएस टावर में रहता हूँ. तो आप कैसे सीख गए इतना अलग अलग देश की भाषा में बोलने के लिए, भाषा शैली में बोलने? Because I've got the experience from the TV shows like British shows, because you can watch any type of British series or movies or anything type of else that is full with British, posh, Australian and Canadian accent, because it is the most common thing in that accent is only to hearing and learning. Because in our English grammar book, because in my English grammar book I have get a tip from my English grammar book, because there is a one of the chapters, the first chapter I have seen, that is read, speak and write. Read, listen, speak and write. That means कि उसमें बोल रहा है कि पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको बोलो, ज़ोर ज़ोर से प्रोनाउंस करो, फिर उसको ध्यान से सुनो कि वो फिर ध्यान से सुनो, सुनने के बाद सुनने के बाद फिर लिखो. वैसे करने के बाद फिर मैंने भी टीवी में, तो वैसे मैंने देखकर कोई लिखा नहीं, बस ना मैंने देखा, अपने दिमाग में घुसाया, फिर उसके बाद इजी से याद हो गया. मुझको कोई क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. मेरी जितनी भी टीचर्स हैं, मेरे टीचर्स भी खुश होती है हमारी, क्योंकि जितनी भी टीचर्स है वो इंग्लैंड से आती है. हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स है वो स्कॉटलैंड से आती है, आयरलैंड से आती है और उसके साथ वो इंग्लैंड और लंदन से भी आती है. अब आप बोल कर दिखाइए. पहले ब्रिटिश से ही शुरू करते हैं. ब्रिटिश में जैसे कि विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं तो कैसे? जो भी है, मैं कुछ भी सेंटेंस या फिर कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ ठीक प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस कुछ भी जो बोलना रहेगा वो बोलूँगा, लेकिन ठीक से बोलूँगा. ठीक है. First, I want to start with the American English, because for the American English, because I love American English so much. So for now, I'm going to do the American English accent, because it is the best English accent to learn. For the time, I want to tell you about the J.K. Rowling. J.K. Rowling is the author of the UK, who has write the 7 Harry Potter books. Like the first books is the Harry Potter and the Philosopher's Stone. The second is the Chamber of Secrets. The 3 is the Prisoner of Azkaban. The 4th is the Goblet of Fire. The 5th is the Order of Phoenix, and the 6th is the Half-Blood Prince, and the 7th one is the Deathly Hallows. First is the Part 1, and second is the Part 2. Last Australia. And for the J.K. Rowling, the last one is the Harry Potter and the Cursed Child, that was inspired by Jack Tiffany and Jack Thrones. Australian. Okay, I want to do Australian English because it is the most common English to learn. Because if we do any type of Australian English, because you all have heard that in the British English we say biscuit, American English we say cookie, but in the Australian we also say biscuit. Sweets and candy को अगर ऑस्ट्रेलियन में अगर बोलेंगे तो वो होगा लॉलीज. और किस देश के?
Okay, I can do the American English because it is a very hard voice English. That because if you do any type of Australian English, voice will get down and down. The harder and harder it will get in the. And the Australian English, because the Australian is the most hardest English from the Cockney accent, and the American English because it is the most hard thing to learn. But mostly of the time I have revised it because it's so easy from me listening and learning. That was my method to learn. और कोई बचा? Yes, I have this Scottish accent. Scottish is inspired by the Scotland and the Ireland accent, but because for the time I want to do the Scottish accent because I have not do the Ireland's Irish accent. For now, I'm going to do the Scottish accent because I'm so much shy, because Scottish is the little bit of crazy and weird voice accent, because it's a little bit of twinkly down when we do this Scottish accent. Can I start? Yeah. Any more? Yes, let me start Scottish accent. When a teacher say hello everyone, so today we are going to learn math. But in the Scottish sentence, we always say like, hello everybody, today is your maths class, we say. And because in the Scottish language, because I am telling the Scottish accent, not the Scottish language, but in the Scottish language, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हिंदी में नाना नानी, लेकिन मुझको 2 वर्ड्स कुछ आते हैं जिसके बारे में मैंने नॉलेज लिया था. तो नाना नानी को बोलते हैं, नाना को अगर बोलते तो ग्रैंडा बोलते हैं, नाना अगर बोलते तो नानी बोलते हैं, मतलब ग्रैंड मदर. हाँ, ये सब चीज़ आप YouTube से देखकर सीख गए? हाँ, YouTube से देखकर तो सीख गए, लेकिन अभी एक और भी एक्सेंट बचा हुआ है. कौन सा? Posh accent. वो भी बोल सकते हैं. For the posh accent I want to do, because posh is also come in the British English of UK, but for the time I want to tell about the posh English is the most commonly English learned, because if you do any posh English, you can see my mouth, that my mouth is turned, and because I want to tell you, for the posh English is full of the British English and received pronunciation and Cockney accent that we are speaking in the posh. First, I want to make a sentence: turn off the TV. We say like that. मतलब कि उसका मतलब हुआ कि तुम जल्दी से टीवी बंद करो. जो लोग वीडियो देख रहे हो, बच्चे लोग, अगर वो सीखना चाहें, वो भी आपकी तरह बनना चाहें, तो कैसे सीख पाएंगे? मैं तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि if they got any type of inspiration, I will not teach them. They can learn by themselves. because मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे लोग अभी तो बहुत लोगों को ब्रिटिश इंग्लिश तो समझ में नहीं आता, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ. मतलब कि जिस बच्चे को अगर सीखने की अगर राह अगर होगी ना, वो मुझको देखे या फिर ना देखे, चैनल में जाए या फिर ना जाए, टीवी देखे या फिर, हाँ, अपने आप ही सीख जाएगा. बल्कि उसको ना मोबाइल टैब किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही टीवी चालू करेगा, जो सीरीज़ आएगा ऑडियो को चेंज करेगा, सबटाइटल्स निकालेगा, आराम से उसको अपना जो सीखना रहेगा वो सीख जाएगा. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी बच्चे को फोर्स नहीं करने वाला कि सीखो. जिसको मन होगा वो अपने आप ही सीख जाएगा, जिसको नहीं मन होगा वो नहीं सीख पाएगा. उसके खुद की फॉल्ट है. सीखना चाहे कि वो जानना चाहे कि रिधन कैसे सीखे, हाँ, वो अगर जानना चाहे तो वो बल्कि टीवी में कोई भी ब्रिटिश और अमेरिकन कार्टून्स सीरीज़
और उसके साथ मैं बड़े लोगों को भी एक टिप्स देना चाहता हूँ। बड़े लोग तो वैसे तो कार्टून्स तो नहीं देखते, तो बड़े लोगों के लिए मैं प्रीफर करता हूँ ऑडिबल ऐप। ऑडिबल ऐप में हम लोग बहुत सारे टाइप के ऑथर्स मिथोलॉजी, फोल्क स्टोरीज़, क्लासिक ड्रामा सीरीज़ के ऑडियो बुक्स होते हैं। साथ में उस वाले ऐप में हम लोग तो सुनकर साथ में देख भी सकते हैं कुछ वीडियोस। वो सब बड़े के लिए है, बड़े लोगों जिसको अमेरिकन और ब्रिटिश सीखना है वो लोग आराम से अमेरिकन और ब्रिटिश इजीली सीख जाएंगे। कैसे इतना सब कुछ सीख ले रहे हैं, इतना बोल पा रहे हैं आप? ये सब मैंने बोला था ना, वो वाला मेथड के बारे में जिसको मैंने अपने ग्रामर बुक में पढ़ा था। उस मेथड का नाम है लिसन एंड लर्न। लिसन एंड लर्न, लिसन एंड लर्न तो दोनों ही तो सेम है ना। एक लर्न एल से चालू होता है, ख़त्म भी होता है एल से ही। हाँ, लर्न, लिसन एंड लर्न, दैट वॉज द मेथड आई हैव लर्न। और उसके से बाकी का जितने में ट्रेनिंग हुआ है कि स्कॉटिश एक्सेंट में इसको कैसे बोलते हैं, इसको ग्रैंडडैड बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसके बारे में तो जब मैं बड़ा होने के बाद मैंने वंडर गर्ल नाम की एक जानवी है उसको मैंने देखा। उसको देखने के बाद मैंने फिर वो भी तो बता रही थी कि मैंने तो सीखा तो है लेकिन मैंने एक ऑनलाइन क्लास कर सीखा है। फिर जानवी जब उसने वो बात जब बताया तो मुझको चैलेंज की तरह लगा। फिर चैलेंज की तरह लगने का मैंने कोई भी क्लास नहीं प्रीफर किया। बचपन से मैं सीखना आ रहा था तो मेरा इजी से मेरा याद हो गया। याद होने के बाद मैंने जो कौटिल्या को जो देखा तो कौटिल्या से मुझको ये टिप मिली कि बल्कि जो भी चीज़ अगर देखो तो सबसे पहले उसको फ़ोन में कोई टिप्स देखो कि आखिर उसको बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। जिन लोगों को अगर एक्सेंट अगर सीखना है तो बाकी का, जिन लोगों को एक्सेंट नहीं सीखना है, कोई दूसरे अगर टैलेंट अगर है तो छोड़ दो। जिसको अगर सीखना अगर होगा तो इजीली इसे सीख लेंगे आराम से, वीडियोस देखकर, सीरीज़ देखकर, बहुत सारे पॉपुलर कार्टून सब देखकर, बहुत सारी चीज़ें। अभी 3 क्लास में ही? हाँ, अभी 3 में हूँ। और उसके बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ। उसके साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब मैं बचपन में जो छोटा था तो बचपन से मैंने मेडल्स और प्राइजेस जीत कर रखे हैं। बहुत? हाँ, बहुत। किस चीज़ में? पढ़ाई में टॉप रहे। हाँ, पढ़ाई के साथ ना बहुत सारे ऐसे भी गरीब बच्चे होते हैं जिसको ऑर्फन बच्चों बोलते हैं। ऑर्फन हुए बहुत लोग, तो बहुत बच्चे लोग बेचारे किडनैप भी हो जाते हैं। लेकिन जो भी बोलो वो सब तो बच्चे तो होते हैं, लेकिन कुछ क्या बोलूँ, ज़्यादातर तो 80% के होते हैं। बाकी के तो जितने भी होते हैं वो बौने होते हैं। उसके साथ लोगों को ट्रिक कर पैसे हाजिर कर लेते हैं। लेकिन जो भी है बाकी के जितने भी होते हैं ना वो सब 80% तो कम से अच्छे रहते हैं। जिन लोगों को बहुत लोग किडनैप कर लेते हैं, उन लोगों के मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर जाता है तो उन लोगों को आश्रम में रहना पड़ता है। तीसरी बात है कि बहुत बच्चों को ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि ना जिनको वो लोग सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, गरीबी में जीते हैं। ऐसे बच्चों को आप पढ़ाइए। हाँ, ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा भी, साथ में फ्री में मनी भी दूंगा। उसी की वजह से मुझको बहुत सारे सर्टिफिकेट और प्राइजेस भी मिले गरीब बच्चों को दान करने के लिए। हाँ, जब भी ये सब डोनेशन अगर आता तो सबसे पहले मैं ही आता था, क्योंकि डोनेशन इसमें आपको प्राइज़ मिल चुका है? हाँ, मिल चुका है। सबसे ज़्यादा मुझको स्कूल में बहुत पसंद करते हैं। मैंने क्योंकि डोनेशन भी किया है। जो भी डोनेशन करने से कुछ भी नहीं होगा, डोनेशन तो एक दिल का काम है। लेकिन जो असली जो चीज़ से होता है वो तो पढ़ाई और डोनेशन दोनों से होता है। लेकिन सबसे पहले तो मैंने डोनेशन किया, दूसरे में तो फिर मैंने अपने पढ़ाई को भी स्टेज को ग्रो करते गया। पढ़ाई अगर नहीं होगा पैसा भी नहीं बनेगा भी, बेचारे फिर उन गरीब बच्चों को कुछ भी नहीं मिल सकेगा। उसके साथ कुछ क्या बोलूँ, बहुत सारे 18% और 50% के बाकी बोले थे कि जो लोग बौने होते हैं। साथ में उसके साथ दूसरी बात है कि ना बहुत लोग तो बौने या फिर कोई नहीं तो रहते हैं, लेकिन बाकी के बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो ना बल्कि घर छोड़कर भागते हैं, नशा वसा करते हैं। उसी की वजह से उन लोगों की आदत ख़राब हो जाती है। लेकिन बाकी का जो 80% जो बच्चे जो होते हैं वो सच में दिल के अच्छे, उसके साथ सेक्रीफाइस्ड अच्छे, उसके साथ दिलदार बच्चे होते हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and